Hello, my smart learners. Welcome back to our favorite channel, Smart Maths by Surbi. Today, we are starting with Chapter 2, Power Play from Ganita Prakash Class 8, Part 2. In this chapter, we will learn what are powers, what happens when exponent becomes 0, what are negative powers, what is scientific notation, and how estimation works in real life. And trust me, after this video, powers will become your superpowers. So, let's begin. So, let us give a quick revision to the powers. So, what are the powers? Instead of writing 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 2, you can write it as 2 raised to the power 4, where 2 is base and 4 is exponent. Exponent tells us how many times base is multiplied. Example, 3 raised to the power 3 is equals to 27. Our next part comes as zero power. This is a very important concept. Now, what is 2 raised to the power 0? Is it 0? No. Let's understand logically. We know that 2 की power 3 divided by 2 की power 3 is 1. Using exponent rule, जब भी डिवीजन आता है तो हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर वाली पावर होती है वो ऊपर जाके क्या होती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है. सो 2 raised to the power 3 minus 3. So this becomes 2 raised to the power 0 and 2 raised to the power 0 is always 1. This is a very important rule. Any number except 0 raised to the power 0 is 1. This is the favorite concept of the examination. So let's move one step ahead. The next topic is negative powers. So if I ask you what is 2 raised to the power minus 1? So हमें क्या रूल पता है? It is a raised to the power m divided by a raised to the power n will always give me a raised to the power m minus n. अब इसी में से हम देख लें, अगर मेरे को कोई एग्जांपल है 2 रेज टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर 2, तो मेरा आंसर क्या आएगा? 2 रेज टू द पावर 1 माइनस 2, तो मेरा आंसर आ जाएगा 2 रेज टू द पावर माइनस 1. और अब मैं देख रही हूं कि मेरे पास जो आया है उसकी पावर क्या है? नेगेटिव है. तो जब भी पावर नेगेटिव होगी तो हम उसका रेसिप्रोकल कर देंगे. सो इट विल बिकम 1/2. सिमिलरली अगर होगा 2 raised to the power minus 4, so it will be 1/2 raised to the power 4. This is a very important rule. I'll write the rule here. It is anything raised to the power as minus n will be 1/a raised to the power n. Our next topic is power line concept. ये भी मैं आपको यहीं समझा देती हूँ. Our next topic is पावर लाइन कंसेप्ट. अगर ये कंसेप्ट समझ आ गया तो सब कुछ समझ आ गया. इफ वी टेक 2 रेज टू द पावर 3, ये क्या होता है? 8. 2 रेज टू द पावर 2 लेंगे, इट इज 4. 2 रेज टू द पावर 1 लेंगे, सो इट इज 2. एंड 2 रेज टू द पावर 0 लेंगे तो मैंने आपको बताया इट इज 1. एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज 1. 2 रेज टू द पावर माइनस 1 विल बी 1/2 and 2 raised to the power minus 2 will be 1/2 raised to the power 2, that is 1/4. अगर मैं इसी को एक नंबर लाइन में ले लेती हूं तो ये याद रखना, जब हम राइट साइड जाते हैं तो हमें पता है राइट साइड क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है. और लेफ्ट साइड क्या होता है? हमेशा नेगेटिव साइड होती है. करेक्ट? तो इसमें भी हमें ऐसे ही करना है. अगर आप राइट साइड जाओगे तो क्या करोगे? आप मल्टीप्लाई बाय 2 कर दोगे. और अगर आप लेफ्ट हैंड साइड जाओगे तो आप डिवाइड बाय 2 कर दोगे. मल्टीप्लाई बाय 2 और ये डिवाइड बाय 2. आप जैसे कि इन एग्जांपल्स में देख लीजिए, जैसे कि 2 रेज टू द पावर 3 है, ये क्या है? पॉजिटिव में है 3. तो मैं राइट साइड जा रही हूं तो मैंने क्या करा? 2 को 3 टाइम्स क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया. तो मेरा आंसर 8 आ गया. 2 रेज टू द पावर 2 है तो अभी क्या है? पावर पॉजिटिव है. तो ऑन द राइट साइड आई एम गोइंग इन द नंबर लाइन. तो क्या करूंगी मैं? मल्टीप्लाई. सो 2 into 2 इज 4. सो मेरा आंसर 4 आ गया.
लेकिन अगर आप देखो नेगेटिव वाली फॉर्म, अब हम एक नेगेटिव पावर वाला ले लेते हैं, दैट इज 2 raised to the power -2। अब आप देख रहे हैं कि इसकी पावर क्या है, नेगेटिव है, और मैंने बोला है जब भी नेगेटिव होगा तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। सो मैंने जो 2 था उसको मैंने क्या करा, डिवाइडेड एज 2 raised to the power 2 लिख दिया, दैट इज 1/4। सो ये वाला कंसेप्ट बहुत ही क्लियर रखना कि इफ यू गो ऑन द राइट हैंड साइड then you multiply by 2, and if you go on the left hand side you divide by 2। Our next topic is powers of 10। अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं 10 raised to the power 3, तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, एज 1000। अगर इसी में मेरे को नेगेटिव लिखना है, जैसे 10 raised to the power -1, तो मैंने आपको बोला था जब भी नेगेटिव पावर होगी सो वी डिवाइड। सो मैं लिख लूंगी इसको 1/10, और दैट इज 0.1। 10 raised to the power -2 will be 1/100, that is equals to 0.01, and 10 raised to the power -3 I can write it as 1/1000, that is 0.001। Decimal moves left in negative powers। Our next topic is scientific notation। So there is a rule for scientific notation, which is this: number written as a into 10 raised to the power n, where a should be greater than or equals to 1 but less than 10। So let us understand with the help of an example। तो हमें फर्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर मेरे पास 54,000 है तो मैं इसको एज अ साइंटिफिक नोटेशन कैसे लिखूंगी, मेरे को क्या करना है, आई हैव टू मूव द डेसिमल 4 प्लेस टू द लेफ्ट। अगर मैं ऐसे करूंगी, सो अगर 4 प्लेस होगा, सो दिस विल बी 1 2 3 4, सो दिस विल बिकम 5.4 इंटू 10 raised to the power 4। इसमें मैंने क्या करा है, डेसिमल को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इफ इट इज 208 1 2 3 एंड 4, सो मैं इसको, अगर मेरे को लिखना है इन साइंटिफिक नोटेशन, और मैं लिख दूंगी 2.08 इनटू, अब कितना शिफ्ट करा है वो लिखूंगी 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 प्लेस से पहले मैंने एक नेगेटिव पॉइंट लगा दिया है, सो इट विल बी 10 raised to the power 6 हेयर। अब बहुत ही अगर स्मॉल नंबर हुआ, लेट अस टेक एन एग्जांपल 0.00045। अब इसकी साइंटिफिक नोटेशन कैसे करेंगे, अब मेरे को क्या करना है, पॉइंट ऑन द राइट हैंड साइड शिफ्ट करना है। तो मैं लिख दूंगी 4.5, लेकिन कितना राइट हैंड साइड शिफ्ट कर रही हूं, 1 2 3 4, आफ्टर 4 पॉइंट्स आई एम शिफ्टिंग, सो इट विल बी 10 raised to the power -4। सो अब ये याद रखना है, व्हेन पॉइंट इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, तो हम क्या करेंगे, अ पॉजिटिव एक्सपोनेंट विल कम इन द साइंटिफिक नोटेशन, लाइक 10 raised to the power 4, 10 raised to the power 6। और अगर हम पॉइंट को शिफ्ट कर रहे हैं ऑन द राइट हैंड साइड, देन इट विल बी अ नेगेटिव पावर। If decimal moves left, it is a positive power. If decimal moves right, it is a negative power। This is a very scoring topic। So our next topic is estimation। अब ये estimation क्या होता है, इसको मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल के साथ समझा देती हूँ। सपोज प्राइस ऑफ अ 1 kg राइस इज 48 रुपीज, और हमारे उसका वेट है लेट्स से 21 kg। आई राइट इट है ₹48, और उसका वेट है 21 kg। सो हमारे पास एग्जैक्टली कितने रुपए का आएगा, ये प्राइस विल बी, द टोटल प्राइस विल बी फॉर 21 kg विल बी 48 इंटू 21, दैट इज 1008 रुपीज, करेक्ट। लेकिन अगर मेरे को इसी को बोला है कि इसको एस्टिमेट करके लगाओ, तब हम क्या करेंगे, इन प्लेस ऑफ 48 जो भी उसका नियरेस्ट नंबर होगा दैट इज 50 ले लूंगी, और 21 का नियरेस्ट क्या होगा, 20, सो मैं 20 ले लूंगी। सो अगर मेरे को कोई बोलेगा इसका एस्टिमेशन बता दो कि लगभग कितना होगा अप्रॉक्स, सो आई डू 50 इंटू 20, 5 2 ज़ा 10, सो आई विल से ₹1000। So this is the estimated answer of the numerical I told you, that is 1 kg rice with weight 21 kg. It is very close to the actual answer but not the exact answer. So you can say that estimation helps in quick thinking.
तो स्टूडेंट्स लेट्स टेक अ मिक्स्ड एग्जांपल फॉर व्हाट वी डिड टुडे। अगर मेरे पास एक क्वेश्चन है 2^3 डिवाइडेड बाय 2^0, सो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें क्या है, सारे लॉज लग गए हैं। तो लेट्स सी कैसे होगा। पहले तो मैं करूंगी, जो भी ब्रैकेट के अंदर होता है पहले हम वो सॉल्व करते हैं। सो इट विल बी 2^3, मल्टीप्लाई का साइन है, सो इट विल बी 2^3 प्लस एंड -2 डिवाइडेड बाय 2^0। सो क्या हो जाएगा, 3 प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, डिवाइडेड बाय 2^0। सो इट विल बी 2^1 डिवाइडेड बाय 2^0 क्या हो जाता है, 1। सो माय आंसर इज 2। So students, with this we have completed part 2 of this chapter. If you found this video helpful, don't forget to like, comment your doubts and subscribe to Smart Maths by Surbhi. Keep practicing and remember, maths is not difficult. It is just logical. See you in the next video. Bye-bye.